Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and we are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience. And in today's session, those students who are specially preparing for SBI PO prelims exam, this session is very much important for all of you to just understand how are we going to improve our accuracy overall in our mock test, because we have already told you that mock test ka analysis is going to play a crucial role in our enhancement of our marks, right? So if you haven't watched that video, I would definitely recommend here to have a look at that. But yaad rakhiyega, it's not only about taking mocks, it's all about improving your speed and accuracy with every attempt. So in this video, I'll be sharing 5 proven strategies, you can say, which will help you to ace your SBI PO mock test. So let's get started, everybody. सबसे पहले टिप्स और टॉक हम करेंगे इस चीज़ के ऊपर, बट पहले ये समझ लेते हैं कि हर एक सेकंड यहाँ पे काउंट कर रहा होता है, एंड दैट टू व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स स्पेशली टाइम के अगेंस्ट हमें काम करना होता है। और इस बार तो हमारा जो इंग्लिश का स्पेशली अगर हम बात करें तो मार्क्स भी काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सो द की इज़ गाइज टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल फोकस ऑन टुडे। ओके, so the very first one is your analyzing your mock test. I mean, this is not a very new thing which you are hearing right now, but still we don't do that. Still हम अपनी उस expectation को जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है वी जस्ट क्लोज दैट विंडो, वी मूव ऑन, वी थॉट ऑफ एनालाइजिंग, बट एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट कि हम नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिव्यू योर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई द सेक्शंस वेयर यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम और मेकिंग फ्रीक्वेंट एरर्स। अगेन आई एम सेइंग यू नीड टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई 2 सेक्शंस स्पेशली जहाँ पे टाइम आप ज़्यादा ले रहे हो और जहाँ पे आपके फ्रीक्वेंट एरर्स हो रहे हैं, या आप कह सकते हो रिपीटेटिव एरर्स हैं वहाँ पे। दिस विल हेल्प you actually to pinpoint your weak areas and work on them. Remember, mock tests are not just for practice, they are for learning and improvement. Second is about your time allocation strategy. Now, this will only come to you when you will have a good hands-on experience. Divide your time wisely among the sections based on your like strength and weaknesses. For example, as I always say, I quote in my session that reading comprehension is one such section of our English which will carry maximum weightage, and here we can actually play around our time. Okay, for example, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पैराजिम्बल उतनी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट वेरी गुड एट दैट, तो आप उसे बाद के लिए रख लो, या सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो बिल्कुल मिड में भी आप चाहो तो देख सकते हो। सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू टॉगल अप। दूसरी चीज़ ये कि आप हमेशा उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ अपना टेस्ट स्टार्ट करो जो आपका स्ट्रेंथ है। ओके, third point is mastering this is art of smart attempts. So guys, here is the golden rule: don't get stuck on tough questions during the exam. Quickly scan through the paper and attempt the easy questions first, as I say, जो आपका strength area है. This will boost your confidence, और वो जो है ना शुरुआत का आपको एक boost देगा, and that will say, and that will also somewhere help to save some time for tougher ones, right? So remember, it's okay to skip a few questions. Focus on maximizing your attempts with accuracy. किसी ने नहीं बोला कि जिसने 30 आउट ऑफ 30 या 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसके ही मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे या उसका ही जो कट ऑफ है वो निकलने वाला है। नो वेयर गाइज, दिस इज़ नॉट की थिंग कि आपको 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 40 में से मैं सिर्फ 25 या 30 अटैम्प्ट करूं, बट वो मेरी एक्यूरेसी जो है ना वो वहाँ बढ़िया रहे। 90 प्लस एक्यूरेसी अगर हम 90% प्लस एक्यूरेसी अगर हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो दैट्स अ बेस्ट थिंग वी कैन एक्चुअली डू। फिर आती है बात प्रैक्टिसिंग विद अ टाइमर पार्ट। आई मीन व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट समवेयर यू विल बी गेटिंग द सेम आइडिया, बट आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट कि आप चैप्टर टेस्ट भी जब आप लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑन iExamB, यू माइट हैव गॉन थ्रू द डैशबोर्ड एक्सपीरियंस, राइट? वो लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिला है कि आप हर एक टॉपिक भी यहाँ टाइमर के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस करते हो। ओके, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिसिंग विद अ टाइमर इज गोइंग टू सिमुलेट योर एग्जाम कंडीशंस, एंड दिस विल अल्टीमेटली हेल्प you to get comfortable with the pressure and improve your speed. So start with individual sections and then gradually हमको full length mock की तरफ जाना है.
Last but not the least guys, focus on accuracy and then speed. I mean, as I said, mention मैंने पहले भी किया मास्टर द आर्ट ऑफ स्मार्ट अटेम्प्ट्स में कि हम ना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहिए क्वांटिटी के चक्कर में. Okay, so accuracy first, speed later. In the initial stages, focus on solving questions correctly, even if it takes time. कोई दिक्कत नहीं है. आपने पूरे पेपर में लेट्स से आज सिर्फ 10 क्वेश्चन आरसी के बनाए, बट वो 10 के 10 करेक्ट थे. दैट विल गिव यू बेटर बूस्ट गाइज एज कम्पेयर टू कि मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और मेरे जो है ना लेट्स से 15 ही करेक्ट हो पाए. सो रादर देन दैट, अटैम्प्ट बाई कीपिंग योर एक्यूरेसी एज अ प्रायोरिटी. ये याद रखिएगा, इस तरह की जो अप्रोच है ना, द इंश्योर्स दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन मार्क्स वाइल इम्प्रूविंग योर पेस, राइट. तो ये पॉइंट्स के साथ साथ आई हैव लाइक क्विक सम बोनस पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ यू, बोनस टिप्स आप इसको कह सकते हैं. पहली चीज़ हो जाती है रिवाइज योर फार्मूला एंड शॉर्टकट, सेव टाइम ड्यूरिंग कैलकुलेशंस. जैसे कि मतलब ये ओवरऑल पेपर के लिए है बच्चे आपका, बिकॉज जितना ज़्यादा हम क्लास में ब्लीड कर लेंगे ना, उतनी कम हमें पेन होगी एक्चुअल बैटल ग्राउंड में, राइट. जितना ज़्यादा हम काम एंड फोकस्ड रहें, उतनी कम पैनिक या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी हमारे एग्ज़ाम में. प्लीज़ डू नॉट over stress yourself guys, take regular breaks, don't burn out, balance study and relaxation. इस चीज़ को हम काफ़ी ग्रांटेड ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जाता है हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं. अल्टीमेटली समटाइम्स इट टेक्स अ टोल ऑन आवर हेल्थ. ओके, तो हो सकता है आपने पिछले 3 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई की और लास्ट के 1 हफ्ते में आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, राइट. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल. एंड लास्ट वन, ट्रैक योर प्रोग्रेस. हर हफ्ते अगर आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो एट द एंड ऑफ 4th वीक जब आपने चौथा मॉक टेस्ट लगाया तो आपको एक क्लियर ग्राफ दिखना चाहिए, एंड दिस विल समवेयर क्लोज टू योर एक्चुअल मार्क्स. तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जब एक्चुअली अटैम्प्ट कर रहा था एग्ज़ाम में वो और जो मैंने मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट किया उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आपने एक अच्छे से ग्राफ बना के रखे हो एंड समवेयर योर actual exams are going to get aligned with that. That's a wrap guys, but before going ahead, there is an important information regarding those people who are interested in mock test B-Kit. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप iExamB पे चैप्टर टेस्ट तो लगा ही सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी लगाते हैं और उसके साथ साथ आपको 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर भी मिल रहा है 143 रुपीज़ में ओनली. सो एनीवन हु इज़ विलिंग टू बूस्ट देयर मार्क्स एंड स्कोर, एक्यूरेसी और स्पीड पे साथ साथ काम करते हुए एनालिसिस भी करना चाहते हैं, तो ये एक पैकेज है जिस पे आप अपना मन बना सकते हैं लेने का. ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट पे भी जाइए, वहाँ से आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी. Okay, and that's a wrap guys. If you found these tips helpful, do not forget to like, share and subscribe to this channel. Drop a comment below अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो छूट गई है जिसके ऊपर आप और कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, तो वो भी आप हमें यहाँ पे शेयर कर सकते हो. रिमेंबर, एवरी मॉक टेस्ट इज़ अ स्टेप क्लोजर टू योर गोल. सो कीप प्रैक्टिसिंग, stay consistent, and I am very sure that you are going to be one step closer to your dream of cracking SBI PO exam. See you all in the next video guys. Bye bye and take care.